This is your 2-month master plan to crack CUET. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. So I'm a final year student at the Sri Ram College of Commerce, Delhi University. And firstly, thank you so much for all the love that you have shown to my recent CUET videos, especially the 3-month strategy. And in the recent CUET video, you guys told me कि अब हमें 2-month strategy video भी चाहिए. And अब क्योंकि बस 2 महीने रह गए हैं to your big day, you have to ramp up your preparation strategy. And of course, I'm here to guide you guys with it. I know कुछ लोगों के board exams ही अभी चल रहे हैं. So this strategy has been made keeping in mind both the students जो class 12 के board exams दे रहे हैं, जिनके board exams हो गए हैं या कुछ droppers हैं अगर CUET के. I've divided this strategy in 5 steps ताकि it's easier for you guys to understand. This video will be really helpful. So without further ado, let's get right into it. Okay, तो सबसे पहले start करते हैं with the first and most important step, that is time management and setting priorities. Obviously हमारे पास गिन के 60 days बचे हैं and we have to use each and every hour of the day very carefully. तो इसलिए जरूरी है कि तुम अपने पूरे दिन को सही से डिवाइड कर रहे हो in different study blocks and you know exactly तुम्हें किस टाइम पे क्या पढ़ना है. अब obviously जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, you have to allocate time both for CUET and your board exams, and you have to remember कि it's not just about the quantity of hours that you study but about the quality, कि तुम कितनी effectively उस टाइम में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हें एक्चुअली समझ भी आ रहा है, क्या तुम याद रख पा रहे हो जो तुम उस टाइम पे पढ़ रहे हो. बिकॉज अगर तुम 10 घंटे पढ़ोगे दिन में और तुमने मटेरियल बहुत थोड़ा सा कवर करा है तो कोई फायदा नहीं है. दैट्स व्हाई हैविंग फोकस स्टडी सेशंस इन व्हिच यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ऑफ कोर्स जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं राइट नाउ, यू विल गिव अ लिटिल मोर प्रायोरिटी टू योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एज यू ऑलरेडी नो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस काफी हद तक सेम है एज CUET. सो तुम्हारी साथ साथ दोनों की प्रेपरेशन हो रही है. बट ऑफ कोर्स अगर तुम थोड़े से घंटे स्पेशली CUET को दे सकते हो by practicing mock tests and question banks, it will be really helpful. Okay, अब अगला step है strategic study planning and resource allocation. Now let's dive into your study material and you have to be strategic with what you study. जैसे मैंने कहा 2 महीने हैं, ज्यादा टाइम है नहीं, सो तुम सब कुछ लेके तो नहीं बैठ सकते कि अच्छा ये बुक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. नहीं, right now is the time to focus on those topics first जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है in your CUET. Obviously as I said, अभी तुम्हें साथ साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी तो मैनेज करना है for those students. So you have to make a plan. You have to see कि अच्छा अगर बोर्ड एग्जाम से ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, so you can focus on something else when you actually sit down and prepare for CUET बीच में. अब जिनके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, you have to focus on the high weightage topics, या जिन टॉपिक्स में तुम वीक हो, तुम्हें सही से समझ नहीं आया है, you can start studying and practicing them more and more. अगर कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें तुम वीक हो, then you have to practice your mock tests as much as you can. And even for droppers, सिलेबस से तुमने काफी बार कर ही लिया होगा. नाउ आई एम अज्यूमिंग चाहे तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं, खत्म हो गए, तुम ड्रॉपर हो, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना एट दिस पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट. एंड सिंस मेनी ऑफ यू गाइज कीप आस्किंग मी फॉर डिफरेंट बुक recommendations, I would like to share with you guys these 10 practice paper sets from Target Publications. They have one of the best CUET books and इनके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके तुम्हारी काफी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी. अभी यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स की बुक्स हैं, बट नॉट जस्ट साइंस. इनके पास सारे स्ट्रीम, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स अवेलेबल है, चाहे तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चाहिए या जनरल टेस्ट के लिए चाहिए. इनकी हर बुक में 10 प्रैक्टिस पेपर्स है एंड तुम जितनी ज्यादा बुक से प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, यू विल बी इम्प्रूविंग एटलीस्ट 10% मोर विद ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट दैट यू गिव एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू क्रैक CUET. इनके सारे प्रैक्टिस पेपर्स एकदम CUET सिलेबस के हिसाब से ही बनाए हैं एंड इवन स्मार्ट कीज आर प्रोवाइडेड ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बट ऑल्सो हाउ टू डू इट फास्ट. इनकी बुक में CUET UG 2022 का पेपर भी गिवन है विद प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड ताकि तुम्हारी प्रेपरेशन एकदम अच्छे से हो जाए, दे हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन CUET, जैसे पैसेज एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द कॉलम्स एंड सो मच मोर. देखो अब लास्ट के 2 महीने बचे हैं एंड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा. ऑफ कोर्स आई एम गोना लीव अ लिंक ऑफ देयर बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर you guys check it out. Okay, the next step is to use effective revision techniques. Now don't think कि
रिविजन कुछ एंड के लिए होता है लास्ट के 10 दिन में, नहीं, वैसे ही हम लास्ट स्टेज पे हैं सीयूईटी को क्रैक करने के, तो इसलिए तुम्हारे नॉर्मल रूटीन में रिविजन भी एडजस्ट हो जाना चाहिए। यू कैन यूज सो मेनी टेक्निक्स लाइक एक्टिव रिकॉल, जिसमें तुम बार बार अपने आप को सेम क्वेश्चन से टेस्ट करते हो टू अंडरस्टैंड इफ यू एक्चुअली रिमेंबर्ड सब कुछ जो तुमने पढ़ा है। एंड ऑल्सो स्पेस रेपिटेशन, विच मीन्स तुम सेम सिलेबस को या सेम टॉपिक्स को, सेम कॉन्सेप्ट्स को कुछ कुछ दिनों में रिवाइज करते हो ताकि तुम उन्हें भूल ना जाओ। उसके साथ साथ तुम अपने खुद के रिविजन नोट्स बना सकते हो, कुछ माइंड मैप्स बना सकते हो, ताकि जिसको देख के तुम फटाफट अपने सिलेबस को एक बार रिवाइज कर सकते हो, एक नजर मार सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट। ओके, द नेक्स्ट स्टेप एंड स्टेप 4 इज द मोस्ट क्रूशियल वन। काफी लोग इसको बस निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार इसकी जरूरत नहीं है, बट दैट इज मास्टरिंग योर मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग योर परफॉर्मेंस। अब तुमने मॉक टेस्ट दे दिया वो तो ठीक है, बट ये मतलब नहीं कि तुमने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देख लिया, कम आए, ठीक है, मूव ऑन कर लिया। एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हें बैठ के ये देखना है कि क्यों तुमने ये वाले क्वेश्चंस गलत करे हैं। इज इट मे बी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, तुम्हें समझ नहीं आया है, या तुम जल्दी नहीं कर पाए, टाइम ज्यादा लग रहा था सॉल्व करने में, या तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तुमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर नॉट गेटिंग अ परफेक्ट स्कोर इन योर मॉक टेस्ट। एंड एक बार तब तुम एनालाइज करोगे अपने मॉक टेस्ट को, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें और किस पे वर्क करना है, व्हाट आर योर वीक एरियाज, किस में रिविजन ज्यादा चाहिए, किस में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, या शायद हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो। सो यू हैव टू इंश्योर कि तुम एक तो मॉक टेस्ट को विद इन द टाइम फ्रेम ही दे रही हो, दैट इज 1 घंटा 45 मिनट्स वट एवर इट इज, एंड यूर एनालाइजिंग योर आंसर्स एज वेल। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टेप 5 is to focus on stress management and look after your health and well-being. Of course, this goes without saying कि you have to take utmost care of your health. इतनी सारी पढ़ाई करने का क्या फायदा होगा अगर तुम एग्जाम वाले दिन सही से एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। Make sure that you're eating healthy, तुम sleep deprived नहीं हो, you're taking breaks regularly to recharge yourself, you're getting involved in some physical activity like exercising, going for a workout, going for a walk, whatever it is. अब I know CUET का टाइम ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है because it's an entrance exam that decides what your undergraduation college is going to be, and I know that everyone wants to get into the best college, but with the right mindset, if you stop taking stress and you just focus on क्या करना है, कैसे करना है, कब कब करना है, तो तुम्हारा आराम से CUET क्लियर हो जाएगा। अगर तुम फालतू में यही सोचते रहोगे and if you keep spending so much time on planning कि अच्छा अब मैं इस दिन शुरू करूंगी, मंडे को शुरू करूंगी, कुछ नहीं होने वाला है। Even if you're watching this video right here in the middle of the day, as soon as this video gets over, open your CUET books and start studying for it. If you will be focused, if you don't take stress, you will be positive and optimistic about your results, सब कुछ अच्छा होगा। So yeah, there you have it, the 2-month master plan to cracking CUET. Always remember, consistency is the key. सही resources को use करो, अपने time को सही से manage करो, and take care of your health, so everything will be sorted. All the very best you guys for CUET that is to come. Of course, I'll be making more videos to help you guys out along the way. Let me know in the comments अगर तुम्हें और कोई doubts हैं, कुछ पूछना है, क्या videos चाहिए on CUET, and I'll be happy to make them for you. So yeah, if you made it till here, comment these emojis, and thank you so much for watching this video. I really hope you found it helpful, and if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends, follow me on Instagram, and until next time, bye.